GHQ سے راولپنڈی سے فوج کی طرف سے تو کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کے کن کن رہنماؤں نے پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے پیٹ میں چھرا گھونپا؟ اور جب اپنے حلقوں میں جائیں گے اب آپ آج کے بعد دوبارہ ڈیزل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیسا ہے یہ؟ ہے نا کمال. ناظرین، اس کے علاوہ ڈاکٹر زرکا کا بھی نام سامنے آیا تھا کہ وہ بھی بک چکی ہے. اور ماشاءاللہ یہ اخراجات آصف علی زرداری صاحب نے کیے تھے جو ادائیگیاں کی ہے. کتنی ہے؟ ارب لگ بھگ ریٹ لگایا ہے انہوں نے. السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد. سب سے پہلے آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹوں میں ڈیولپ ہونے والی خبروں کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے. جی ہاں ناظرین، آئینی ترمیم سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو چکی ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی پیٹھ پر کس کس نے چھرا گھونپا. جی ہاں ناظرین، پی ٹی آئی کے وہ کون سے رہنما تھے جنہوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. اس کے علاوہ بات کریں گے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد کس نے کیا کھویا اور کس نے کیا پایا. اس کے علاوہ بات کریں گے منظور شدہ 26ویں آئینی ترمیم کے اہم نکات کے حوالے سے. جی ہاں ناظرین، تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اب منظور ہو چکی ہے. آئینی ترمیم سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو چکی ہے. اس آئینی ترمیم کے اہم نکات آپ کو بتاؤں گی. سپریم کورٹ ججز تعیناتی کمیٹی کے لیے ایک سینیٹر ایک رکن اسمبلی کا نام وزیر اعظم دیں گے. تعیناتی کمیٹی میں اپوزیشن کی طرف سے دونوں نام اپوزیشن لیڈر تجویز کریں گے. آئینی ترمیم کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی. سینئر ترین کے بجائے 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی جج کا نام وزیر اعظم کو بھیجے گی جبکہ وزیر اعظم صدر مملکت کو سمری بھیجیں گے. اگلا نقطہ، چیف جسٹس کی تقرری کمیٹی میں 8 ارکان اسمبلی اور 4 سینیٹر شامل ہوں گے. پارلیمانی کمیٹی میں سیاسی جماعتوں کے عددی تناسب سے ارکان شامل ہوں گے. اگلا پوائنٹ ہے، کمیٹی چیف جسٹس کی مدت پوری ہونے سے 14 روز پہلے نئے چیف جسٹس کا نام دے گی جبکہ چیف جسٹس کی مدت پوری ہونے سے 3 روز پہلے نئے چیف جسٹس کی تقرری کی جائے گی. اگلا نقطہ ہے کہ دوہری شہرت کا شخص سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکے گا. اگلا پوائنٹ ہے، ہائی کورٹ میں 5 سال جج رہنے کے بغیر سپریم کورٹ کا جج نہیں بنا جا سکتا. سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے کم از کم 15 سال ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وکیل رہنا لازم ہوگا. اگلا پوائنٹ ہے، چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی جبکہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے. چیف جسٹس سوموٹو نوٹس نہیں لے سکیں گے اور اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز نہیں کر سکتے. چیف جسٹس دائر درخواست کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتے. اگلا نقطہ ہے، سپریم کورٹ ہائی کے زیر التوا مقدمات دوسری ہائی کورٹ یا خود کو منتقل کر سکتی ہے. اگلا نقطہ ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئینی بینچز ہوں گے. آئینی بینچ کے ہیڈ کو پریسیڈنگ جج کہا جائے گا. آئینی بینچ کا پریسیڈنگ جج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گا جبکہ آئینی بینچ میں جج کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا. آئینی بینچ آئین کی تشریح اور دیگر آئینی مقدمات سنے گا. اگلا نقطہ ہے، آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے برابر ججز تعینات کیے جائیں گے. کوئی بھی دوہری شہرت والا شخص ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا. ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کم از کم 10 سال ہائی کورٹ کا تجربہ یا عدالتی اموار کا تجربہ لازمی ہوگا. اگلا پوائنٹ ہے، ہائی کورٹ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز نہیں کر سکے گی. ہائی کورٹ ترمیم کے بعد سوموٹو نوٹس نہیں لے سکے گی. عدلیہ استدعاء کے علاوہ کوئی فیصلہ یا ہدایت نہیں کر سکتی. اگلا نقطہ ہے، صوبائی سطح پر ہائی کورٹ میں آئینی بینچ ہوں گے.
जुडिशल कमीशन आईनी बेंच में जज का तकर्रुर करेगा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल तश्कील न होगी। अगला नुक्ता है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह होंगे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज मेंबर होंगे, जबकि 2 मेंबर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अगला नुक्ता है, मुद्दत पूरी होने के बावजूद नए चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर आने तक पुराने बरकरार रहेंगे। पुराने मेंबर कब तक ओहदे पर रहेंगे, इस मुतालिक तरमीम में कुछ नहीं बताया गया। मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद जब तक नया कमिश्नर और मेंबर नहीं आता तब तक पुराना बरकरार रहेगा। तो नाज़रीन, ये थे 26वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात। अब बात करते हैं कि आईनी तरमीम के दौरान पीटीआई के किन किन रहनुमाओं ने पीटीआई के या इमरान खान के पीठ में छुरा घोंपा। जी हाँ नाज़रीन, पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने इस तरमीम के हक में भी वोट कास्ट किया। इन रहनुमाओं में जो हाउस में आए उनके नाम इस मुताबिक है, चौधरी उस्मान, ज़हूर और औरंगज़ेब तो हाउस में मौजूद थे। इनके अलावा मुबारक ज़ेब भी हाउस में आए थे, जिन्होंने इस तरमीम के हक में अपना वोट कास्ट किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान रियाज खान से। लेकिन एक दो लोगों को देखकर हैरत हुई कि ये बंदे कहां से बीच में आ गए। शहबाज गिल साहब ने जो रिपोर्ट किया है कि वो देखना वो पार्टी की मेन कमेटी के अंदर भी शामिल है, तो शहबाज गिल के पास डायरेक्ट पार्टी से इंफॉर्मेशन होती है, कोर कमेटी में भी होते हैं। तो उन्हीं से मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा बंदा प्रॉपरली अब तक लोटा बना है। बहरहाल जो हाउस के अंदर जो लोग आए लोटे बन के, मैंने आपको 3 नाम पहले बताए थे। मैंने चौधरी रियाज का आपको शुरू से बताया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था औरंगजेब खिच्ची का और ज़हूर कुरैशी का। तो जनाब ये ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची और उस्मान, सॉरी चौधरी रियाज नहीं, उस्मान, चौधरी उस्मान का बताया हुआ था। ये तीनों तो कंफर्म हाउस के अंदर आए। इनके अलावा 2 और बंदे हैं जो हाउस के अंदर आए, उनमें एक जनाब मुबारक ज़ेब। तो वो मुबारक ज़ेब जिसने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, अपने शहीद भाई के खून के नाम के ऊपर वोट लिया, वो जो चौकों में खड़ा होकर कहता था कि इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने जितनी शराइत रखी वो सारी शराइत सूबाई हुकूमत ने मानी। इसके बावजूद उसी मुबारक ज़ेब ने पीठ में छुरा घोंपा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक जी चौधरी रियाज, लालच भी बहुत बड़ा था, पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा था। तो जनाब चौधरी साहब फौरी तौर पे वापस पहुंचे और वापस पहुंचने के बाद उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। ये वो 5 लोग हैं जो हाउस के अंदर आए। जो हाउस में नहीं आए 4 लोग, वो कौन से हैं, जरा वो भी आप नाम सुन ले। इनमें एक रियाज फतेहाना साहब है। रियाज फतेहाना साहब पाकिस्तान से बाहर थे, उनके बेटे को उठा लिया गया और उनके साथ बड़ी लंबी चौड़ी नेगोशिएशंस हुई, उनके बेटे को छोड़ दिया गया, फिर दोबारा उठा लिया गया। तो रियाज फतेहाना साहब आए और ये गवर्नमेंट की लॉबी के अंदर मौजूद थे। उनके अलावा जी ज़ैन कुरैशी 16 तारीख से अपनी फैमिली के साथ राब्ते में नहीं है और ज़ैन कुरैशी की एहलिया को भी इसी बीच में गायब किया गया था 4 घंटे के लिए। फिर ज़ैन कुरैशी जो है वो देखे गए हुकूमती कैंप में। अब देखना यह है कि ज़ैन कुरैशी इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद अपने वालिद को जेल से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। क्या अगर उन्होंने ये किया है तो अपने वालिद से पूछ कर किया है या उनकी मर्जी के खिलाफ किया है, फैमिली उनकी क्या कह रही है, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में खुलेंगी। और ज़ैन कुरैशी के साथ एक्चुअली हुआ क्या, ये भी हमें जल्दी पता चल जाएगा। इसके अलावा ये मिकदाद हुसैन, जिनके बारे में सब कह रहे थे कि ये बिक गए और इन्होंने अपने आप को अगवा करवा लिया है, तो ये भी जनाब शामिल है। और एक जो है वो असलम घुम्मन साहब। तो ये वो 9 लोग हैं जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूं। अब ये लोग अपने हलकों में जाके आवाम से वोट मांग के देखें, इनको लग पता जाएगा। तो नाज़रीन, ये थे पीटीआई के चंद रहनुमा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने पीटीआई की पीठ पर छुरा घोंपा है, जिसके हवाले से इमरान रियाज खान बता रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं कि इस आईनी तरमीम के बाद किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। जी हाँ नाज़रीन, इस आईनी तरमीम के बाद बहुत से लोग एक्सपोज हो गए हैं, जिनमें पीटीआई के रहनुमा भी शामिल है और हुकूमत के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं और इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स भी शामिल हैं जो कि एक्सपोज हो गए हैं। नाज़रीन, इसके अलावा डॉक्टर ज़रका का भी नाम सामने आया था कि वो भी बिक चुकी है, लेकिन उनका अब एक वीडियो बयान सामने आ गया है जिसमें उनका कहना है कि मैंने कोई डील नहीं की है, मैं अब भी इमरान खान के साथ हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर ज़रका हूँ और मैं आप लोगों को, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको यकीन दिलाया था कि मैं खान साहब को छोड़ने वाली नहीं हूँ, कुछ भी मुश्किलात आ जाएं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आपकी काविशों से मेरा बेटा रिहा हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि जो मेरे खिलाफ एक हेट कैंपेन चल रहा है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, ना मैंने कोई डील ली है, ना मैंने कोई वोट दिया है और मेरा गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है।
और आप लोग हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके अलावा शरफजल मरवत ने भी तस्दीक की थी कि 9 बिके हैं, 5 सामने आए हैं, 4 रिज़र्व रखे गए थे, पैसों पर बिके हैं। अरब के लगभग भी अदद बिके हैं। आसिफ जरदारी ने अदायगी की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी के बच्चे अगवा नहीं हुए थे, सब मिली भगत थी। तो जीना राकीन ने वोट नहीं दिया पार्टी के कमांड पे और हुकूमत की ईमा पे वोट दिया। इन सब के हवाले से 2-3 वाज़ेह बातें कर दूं। हमारे 9 मेंबरान असम्बली को आज लाया गया था, 5 को पेश किया गया और 4 को रिजर्व में रखा गया था। कुछ और लोग भी इनके पास रिजर्व में मिले हुए थे और माशाल्लाह ये अखराजात आसिफ अली जरदारी साहब ने किए थे, जो अदायगियाँ की है। कितनी सर? अरब लगभग रेट लगाया इन्होंने और ये ज़मीर खरीदे लोगों के। इन्होंने हर महीने को अप्रोच किया है और हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जो ज़मीर फरोश जो खान के नाम पे वोट लेके आज उनके साथ बैठे थे, तो मैंने और उमर अयूब खान ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की। जब ये वोट के लिए खड़े हुए तो हाथों में कागज़ उठा के उन्होंने इस तरह रख लिए ताकि अपने चेहरे छुपा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये मैं बता दूं, इन लोगों ने हमें भी मामू बनाया। पहले खबर डाल देते थे कि जनाब फलां का बच्चा उठा लिया, फलां का ये उठा लिया। ये सारी जो है मेरी भगत होती थी, कोई उठाना मुठाना नहीं होता था। सिर्फ पैसों पे ये बिके हैं, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करते तो दुनिया थी। और इन लोगों ने ये उठाए जाने को जवाज़ बनाया है। और जो आज आईनी तरमीम हुई है इसमें बैरिस्टर गौर साहब की तकरीर। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान से हफ्ते वाले दिन पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी, जिसमें इमरान खान ने उनको साफ साफ कहा था कि वो इस आईनी तरमीम के हक़ में नहीं है। उन्होंने बोला था, बल्कि उन्होंने जो पीटीआई के रहनुमा वहाँ गए थे उन्हें डांटा था कि तुम लोगों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को एहतजाज का बोला था जो कि जिस पर अमल ही नहीं हुआ। तो नाज़रीन, हम ये कहते हैं कि आईनी तरमीम के हक़ में जब नहीं थे, पीटीआई के जो अराकीन नहीं थे, तो इन्होंने अब कोई एहतजाज क्यों नहीं किया? अब इनके कोई भी रहनुमा सामने आके क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस हवाले से देखते हैं कि मज़ीद तफसीलात इस हवाले से मज़ीद कुछ तफसीलात जानते हैं मंसूर अली ख़ान से, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। और ये जो गुड डील थी ऑब्वियसली ये किसके लिए होगी? ये इमरान खान साहब के लिए होगी कि जी आप ठीक है हम वो वोट कर देते हैं, आप बताएं हमें देते क्या हैं, आप हमें क्या देंगे? एक चीज़ तो जो कि अभी तक की इतलात के मुताबिक तो नहीं मिला है। दूसरी बात ये, इस सारी चीज़ के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वो क्यों ये देख रहे हैं, उनको ये नज़र आ रहा है कि यार ये जब अपना चीफ जस्टिस लेकर आएंगे और ये जो आईनी अदालत ये बनाएंगे, तो हमने तो 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो है बैठ के मूव करनी थी पिटिशन, तो वो तो इसका रास्ता रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर बैठ के? क्योंकि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही इनकी निगाहें थी कि वहाँ से हमें शायद कुछ जो है वो खैर की खबर मिल जाए और हमारे लिए कोई रिलीफ मिल जाए। क्योंकि ज़ाहिर बात है पिंडी से तो आ नहीं रही, GHQ से, रावलपिंडी से, फौज की तरफ से तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तो सिर्फ एक ही डर था जहाँ पे इनको ये था कि जैसे ही फाइज़ साहब हटेंगे ये 25 तारीख को, तो उसके बाद जब अगला चीफ जस्टिस आएगा तो हमें वहाँ से कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद है। वो भी नहीं हुआ। अब ये तो वो सिलसिला वो भी सारा उलट गया। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आया क्या? फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कह रहे हैं कि जनाब जिस तरह MQM पाकिस्तान बनी थी ना, अब आप इंतज़ार कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बनेगी। बिल्कुल उसी तरह मतलब है इनका अब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। वो सियासतदानी क्या जो वो मौके से फ़ायदा ना उठा सके। मैं खुल के बात करूँगा, हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लगी हुई, मैं खुल के बात करूँगा। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर मौलाना ने जो ज़र्ब लगाई है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अनप्रेसिडेंटेड। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। उन्होंने मौलाना के मुंह से, उन्होंने PTI के मुंह से मौलाना की इतनी तारीफ़ें करवा ली हैं कि पूरा का पूरा एक स्टॉक मीडिया के पास इकट्ठा हो गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर बंदे के मुंह से उनकी तारीफ़ करवाई गई। अगले इलेक्शन में किस मुंह से जाके मौलाना के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे? और जब अपने हलकों में जाएंगे, अब आप आज के बाद दोबारा डीजल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसा है? ये है ना कमाल कि अपने सियासी हरीफ को उधर लाके खड़ा किया है कि वो पानी भी नहीं मांग सकता। आपको दर के चक्कर भी लगवाए, सारे चक्कर लगवा के
ٹھیک ہے, اور سارا بلبوتا آپ کے اوپر ڈالا کہ جناب ہم تو آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں, ہم تو آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں, ہم تو آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور اینڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں نہ کوئی ترمیم کے حوالے سے کچھ آیا, نہ ویسے کچھ آیا, کچھ بھی نہیں. مولانا صاحب نے اپنے سالوں کا بدلہ لے لیا. آئندہ یہ ڈیزل بول کے دیکھیں کس منہ سے بولیں گے. تو مولانا has played his cards well. اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے, یہ جب یہ سارا کچھ ووٹنگ پروسیس سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے, اس کے بعد مولانا کے ہاتھ میں اب کیا آنے والا ہے. تو ناظرین یہ تھی آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ تفصیلات. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.